Good morning, students. Today we will discuss about carboxylic acid. So first of all, we will discuss about the nomenclature of carboxylic acid with haloalkane and some other compounds like benzene. So यहाँ पे देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का nomenclature करने जा रहे हैं and some methods for the preparation of carboxylic acid and some chemical reactions shown by the carboxylic acid means any compound contain carboxylic acid. So which type of chemical reaction means chemical property. So first of all we will discuss about the IUPAC nomenclature of carboxylic acid. So in general in previous class I already discussed about the nomenclature of Na groups. So here we will discuss about the nomenclature of carboxylic acid. So first of all we know alkane and the any alkane contain carboxylic acid, then the name can be written as alkanes and replace the E from alkane and add oic acid. So here alkane, the name alkane convert into alkanoic acid by the removal of E. So here like a CH3 COOH, here the name of this compound is acetic acid, general name, and the IUPAC name. So here structure can be drawn like this: HHHC double bond O, here OH. So this COOH is a group of carboxylic acid, means formula of carboxylic acid. So this one is carboxylic acid and this one is CH3 means alkyl group. So here the number of carbon atom is 2 and the CC contain single bond. So here 2 carbon means eth ETH and a single bond means ANE. Single bond means ANE. So the name of compound according to this rule will be ethane minus E plus oic acid. Finally the name of compound will be ethanoic acid. कॉमन नेम एसिटिक एसिड, इसका जो कॉमन नेम है एसिटिक एसिड बोलते हैं. इसका जो सोर्स होता है विनेगर होता है. नेक्स्ट देखते हैं कि जैसे यहाँ पर दिया गया है HCOOH, कॉमन नेम है फार्मिक एसिड. तो कॉमन नेम के बारे में हम लोग नहीं बोल सकते, कॉमन नेम हम लोग जनरली याद कर लेंगे, ज़्यादा अच्छा है. IUPAC नेम देखेंगे. सिंगल कार्बन मीन्स मेथ मीन्स मीथेन एंड डबल OH है, मतलब क्या हो जाएगा ओइक एसिड. तो E को हटा करके मेथेनोइक एसिड. यहाँ पे देखेंगे COOH CH2 COOH. तो हियर द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज 3 मीन्स प्रोप. ईच मीन्स यहाँ पे देखेंगे कि हर एक कार्बन के बीच में मीन्स हर 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है. सो सिंगल बॉन्ड इज ए रिस्पॉन्सिबल फॉर द सफिक्स ANE N. So pro plus N means propane and the COOH means here compound contain 2 acid group. This one is first acid group and this one is second acid group. So here we will write dioic acid and the before the name of dioic acid we can write the position of acid group. So here the name of compound will be propane. Here E is subtracted by the oic acid. So propane 1,3 dioic acid. So this 1,3 is the position of COOH group in this compound. And the common name is malonic acid. कभी कभी पूछा जाता है कि malonic acid का फार्मूला क्या होता है. तो IUPAC नंबर अगर याद है तो malonic acid का स्ट्रक्चर ऑटोमेटिक बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा. नेक्स्ट है COOH CH2 CH2 COOH. So here the number of carbon atom is 4 and carbon contains single bond. So the 4 carbon atoms means but and the single bond means N. So the name of compound means prefix means parent chain will be butane. AN means single bond and here 2 acid group are present. So the name will be dioic acid and the dioic acid, before the name of dioic acid we can write the position of dioic acid.
So butane means pyrene chain 1 2 3 4. 1 4 means the position of dioic acid, means oic acid. Here 1 2 3, here 4. तो यहाँ पे जो डाइओइक एसिड के सामने 1 4 लिखा गया उसका पोजीशन है कि पहले और चौथे पोजीशन पे ओइक एसिड हमारा प्रेजेंट है। नेक्स्ट है COOH। तो यहाँ पे देखेंगे कॉमन नेम है, द कॉमन नेम ऑफ दिस एसिड इज द ऑक्जेलिक एसिड एंड द IUPAC नेम इथेन डाइओइक एसिड आर 1 2। 2 कार्बन है मीन्स इथेन, सिंगल बॉन्ड मीन्स ANE, ई को हटा देंगे, डाइओइक एसिड आएगा, डाइओइक एसिड के पहले 1 2। सो द नेम ऑफ कंपाउंड विल बी इथेन 1 2 डाइओइक एसिड। नेक्स्ट है बेंजीन लाइक कंपाउंड। तो बेंजीन कंटेन्स COOH। सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी बेंजोइक एसिड, या फिर पहले लोग जो पढ़े हैं अकॉर्डिंग टू प्रीवियस रूल वी कैन राइट द नेम बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। हियर कार्बोक्सिलिक एसिड इज ओनली 1 कार्बन एंड बेंजीन इज ए प्रीफिक्स। ठीक है, प्रीफिक्स हो तो नहीं बोलेंगे, हमारा पायरेन चेन आ जाएगा, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड अगर यूज़ करेंगे तो हम इसको तो काउंट किए लेकिन हमारे चेन से बाहर है, तो इसको हम डायरेक्ट बेंजोइक एसिड भी बोल सकते हैं और बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोल सकते हैं। बेंजोइक एसिड ज़्यादा यूज होने वाला है, ठीक है, कि मोस्टली ये प्रिफर होगा। नेक्स्ट है बेंजीन के साथ COOH। तो नाम है थैलिक एसिड। P लिखा गया है लेकिन P वहाँ पे साइलेंट रहता है, नाम होता है थैलिक एसिड। मीन्स बेंजीन कंटेंट 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप इन 1 and 2 पोजीशन, कि बेंजीन के पहले और दूसरे कहने का मतलब कि जहाँ से ये लोग जो अटैच हुए हैं वही पहला और दूसरा हो जाएगा। अगर नीचे वाला पहला हो तो ऊपर वाला दूसरा, और अगर ऊपर वाले को पहले मानेंगे तो नीचे वाला दूसरा। तो इस तरीके से हो जाएगा ये बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर इसके हिसाब से रखा जाए, ये ऊपर वाले के हिसाब से बेंजीन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हो जाएगा इसका कॉमन नेम। और यही नाम हमें यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं एक को अगर चैन में लेता हूँ, मीन्स काउंटिंग में लेता हूँ, तो पूरा बेंजीन रिंग भी छूटेगा काउंटिंग से और ये भी छूट जाएगा। तो मैं क्या करूँगा कि मैं इस चैन को ले लूँगा 1 2 3 4 5 6। तो हमारा पेरेंट चैन क्या हुआ, बेंजीन। Here one thing also remember, that is any compound which contain more than one same group, like here 2 carboxylic groups are present, so this cannot be replaced by the name of oic acid। कि अगर मान लो कोई भी कंपाउंड ये 2 ग्रुप रखा है, ये दोनों सेम हैं, अगर 2 सेम ग्रुप रखा है तो वहाँ पे हम ये लास्ट वाले को नहीं हटाएंगे, चाहे वो बेंजीन हो या कोई सा भी एल्केन हो, और बाकी नाम जैसा है वैसा ही रहेगा। तो यहाँ पे देखेंगे नाम क्या हो जाएगा, द नेम ऑफ दिस, द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी बेंजीन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे देखेंगे बेंजीन कंटेन CH2COOH। नाम देखेंगे, यहाँ पे नंबरिंग अगर करेंगे तो नंबरिंग मुझे बाहर से करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा मेन ग्रुप यहाँ पे COOH है, ठीक है। तो ये हमारा प्रीफिक्स आ जाएगा पूरा, और ये हो जाएगा हमारा C6H5, और एंड द नेम ऑफ C6H5 इज फेनिल, ठीक है। इफ बेंजीन considered as a prefix chain, then the name of benzene will be phenyl, and here only 2 carbon atoms are present in parent chain, so due to this 2 carbon the name will be eth, and a single bond means N means ethane, and here compound contain COOH means ethane oic acid। here the position of COOH is 1। तो यहाँ पे देखेंगे COOH का जो पोजीशन है 1 है, ये 2 है, तो फेनिल हमारा प्रीफिक्स हो जाएगा, तो फिर हो जाएगा फेनिल। फेनिल के पहले पोजीशन देना है, ठीक है, तो 2 इज द पोजीशन ऑफ फेनिल रिंग, तो हियर द नेम विल बी 2 फेनिल, एंड फाइनली पेरेंट चेन इज इथेन एंड द सफिक्स विल बी ओइक एसिड। तो ये नाम हो जाएगा 2 फेनिल इथेनोइक एसिड। स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो होगा, तो इस तरीके से हो सकता है, ठीक है, कि COOH फाइनल ले लिए, हियर एल्किल ग्रुप्स आर अटैच्ड, ठीक है, कि यहाँ पे एल्किल ग्रुप जो है होंगे, सिंगल एल्किल ग्रुप होगा, तो COOH, तो
ड्यू टू द difference in electronegativity of carbon and oxygen, here the bond can be polarized and carbon produce positive charge and oxygen produce negative charge. सो यहाँ पे देखेंगे प्लस माइनस है, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरीके से वही बना लेता है ये कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी हुआ, ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा और प्लस चार्ज है यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से भी ये केमिकल रिएक्शन शो करता है। अगला ये वाला रिंग, ये पेंटेन का रिंग है CH3COOH। तो इसका नाम लिख करके भेजेंगे, ठीक है। तो ये होमवर्क रहेगा कि इसका नाम लिख करके भेजेंगे। उसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कि व्हाट आर द मेथड्स बाय विच वी कैन प्रोड्यूस द कार्बोक्सिलिक एसिड। सो हियर फर्स्ट पॉइंट इज फ्रॉम प्राइमरी एल्कोहल कि प्राइमरी एल्कोहल से हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे कैसे। तो बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ suitable oxidizing agent like KMnO4, K2Cr2, 7RCrO3 in acidic medium, and KMnO4 is a strong oxidizing agent, and KMnO4 convert a primary alcohol into carboxylic acid in any medium like acidic, neutral or alkali. Alkali means basic medium। तो KMnO4 हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसको किसी भी मीडियम में लेंगे प्राइमरी अल्कोहल को सीधा सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड में ये कन्वर्ट कर देता है। हाँ, अगर नीचे वाला अगर लेते हैं तो वहाँ पे हमें मीडियम एसिडिक देना पड़ेगा, ठीक है। और ये CrO3 एसिडिक मीडियम में इसी को नाम दिया गया है जोन्स रीजेंट, ठीक है। ये CrO3 को ले रहे हैं एसिडिक मीडियम में तो उसी को बोलते हैं जोन्स रीजेंट। तो ये भी हमारा प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकता है, मीन्स करता है। उसके बाद है CH3CH2OH, एल्कलाइन KMnO4 है, H3O+ है, ठीक है। तो एल्कलाइन KMnO4 मतलब किसी भी मीडियम में ले सकते हो, H3 मतलब ये हाइड्रोजन के लिए है। तो देखते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल ये एथेनॉल, सीधा किस में कन्वर्ट हो गया, एथेनोइक एसिड में। नेक्स्ट है B CH3CH2H CH2OH CrO3 H2SO4, ठीक है। ये जोन्स रीजेंट लिया है एसिडिक मीडियम में CrO3, तो ये भी हमारा प्राइमरी अल्कोहल ही है, मीन्स CH2 से डायरेक्ट एक ही कार्बन जुड़ा है। अगर 8 है तो इसको कंटिन्यू 8 बार लिखेंगे ऐसे करके, तो ये 8वें नंबर से ये CH2OH यहाँ पे जो अटैच होगा और लास्ट वाले पहले वाले से CH3 अटैच होगा। तो 8 ये हो जाएगा हमारा डेकेनॉल। डेकेनॉल कन्वर्ट इनटू डेकेनोइक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ CrO3 इन एसिडिक मीडियम नोन एज जोन्स रीजेंट कि बाय द हेल्प ऑफ जोन्स रीजेंट डेकेनॉल कन्वर्ट इनटू डेकेनोइक एसिड और प्राइमरी अल्कोहल कन्वर्ट इनटू carboxylic acid. Next one is the second method प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम एल्किल बेंजीन कि एल्किल बेंजीन से हमें कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। तो एल्किल बेंजीन कहने का मतलब है बेंजीन कंटेन एल्किल ग्रुप्स, ठीक है। एल्किल मीन्स मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल एक्सेट्रा। तो एल्किल बेंजीन है, तो एल्किल बेंजीन को KMnO4 लिए बेसिक मीडियम में लिए, तो जैसे ही KMnO4 डाल दिए ये CH3COO के मीन साल्ट में कन्वर्ट होगा, और जैसे ही सेकंड वाला मीडियम देंगे H3O तो ये हमारा बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो गया। तो हियर क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड हाउ विल यू कन्वर्ट टॉलुइन इनटू बेंजोइक एसिड कि टॉलुइन से एक बेंजोइक एसिड कैसे बनाओगे, ये क्वेश्चन बनेगा। तो ये पहला नंबर में डालेंगे KMnO4 KOH और नीचे में दूसरा नंबर डाल के H+ लिख देंगे ताकि टॉलुइन को हम लोग सीधा सीधा ये बीच वाला स्टेप ना दिखाएं, सीधा सीधा इसको इसमें कन्वर्ट कर देना है। तो कोई भी टॉलुइन लेते हैं, ठीक है, टॉलुइन को सीधा बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है। तो दिस रिएक्शन विल बी टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 इन बेसिक मीडियम और एसिडिक मीडियम विथ H+। सेकंड है प्रोपिल बेंजीन, तो इसे प्रोपिल बेंजीन लिया गया है, KMnO4 है, KOH है, ये है। तो यहाँ भी साल्ट बनेगा पहला, ठीक है, पोटेशियम बेंजोएट, और फाइनली H+ के प्रेजेंस में COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चाहे टॉलुइन से बेंजोइक एसिड हो या प्रोपिल बेंजीन से बेंजोइक एसिड हो, तो बेंजीन के बाद अगला जो कार्बन है वहीं पे ये COOH में कन्वर्ट हो जाता है, बाकी इधर निकल जाएगा। बेंजीन के बाद अगला जो कार्बन है, यहाँ बेंजीन के बाद अगला ये कार्बन है, बेंजीन के बाद अगला ये कार्बन है, तो ये सीधा सीधा हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ओइक एसिड में, और बाकी जो है इधर साइड में निकल जाएगा। तो यहाँ देखेंगे कुछ नोट है
कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्किल ग्रुप्स आर ऑक्सीडाइज्ड इन इट वाइल टर्सरी ग्रुप्स इज नॉट अफेक्टेड। यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी को हम लोग प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्किल ग्रुप्स, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंडरी एल्किल ग्रुप बोल देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इस वाले से इधर भी जुड़ा है इधर भी जुड़ा है, ठीक है। तो देखेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्किल ग्रुप्स आर ऑक्सीडाइज्ड इन इट, कि इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी एल्किल ग्रुप को तो ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, लेकिन टर्सरी को हम लोग नहीं कर सकते। पता चला कि इस कार्बन से ऐसे ऊपर एक नीचे एक और ये साइड में जुड़ा है, या फिर 1 2 3 एक एल्किल ग्रुप, एक ऊपर में एल्किल, एक नीचे में एल्किल, और ये फेनिल, तो ये तीन अगर जुड़ा है तब वो उसको नहीं कर पाएंगे। टर्सरी ग्रुप इज नॉट अफेक्टेड, कि यहाँ पे इस रिएक्शन के थ्रू टर्सरी जो हमारा कंपाउंड होगा कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। नेक्स्ट है फ्रॉम नाइट्राइल या फिर एमाइड। तो नाइट्राइल का मतलब है साइनाइड। साइनाइड का जो बेसिन हम जब यूज करते हैं तो वहाँ पे नाइट्राइल बोला जाता है। अगर मान लो से कोई ज़्यादा प्योरिटी वाला नहीं है तो नाइट्राइल बोलेंगे, और ग्रुप में अगर साइनाइड ही में रहेगा तो वहाँ पे हम लोग नाइट्राइल यूज करते हैं, लाइक एल्किल नाइट्राइल। तो नाइट्राइल आर हाइड्रोलाइज्ड टू एमाइड्स देन टू एसिड्स इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक और बेसिक मीडियम अस ए कैटलिस्ट। यहाँ पे एल्किल नाइट्राइल हम लोग लिए हैं, एल्किल साइनाइड भी बोलते हैं और एल्किल नाइट्राइल भी बोलते हैं इसको। तो जैसे एसिड या बेसिक मीडियम लेंगे इसके सीधा एमाइड में कन्वर्ट होगा, मीन्स एल्किल नाइट्राइल कन्वर्ट इनटू एल्किल एमाइड इन एसिडिक और बेसिक मीडियम, एंड देन अगेन इट विल कन्वर्ट इनटू एसिड। कि पहले एल्किल नाइट्राइल हमारा एमाइड में कन्वर्ट हुआ और एमाइड फिर से हमारा एसिड में कन्वर्ट हुआ सेम कंडीशन पे। तो इस रिएक्शन का एक नाम है स्टीफन रिएक्शन अच्छा स्टीफन नहीं है, दूसरा रिएक्शन है ये, फिलहाल यहाँ पे नाम नहीं है। स्टीफन के लिए CL2 आता है। तो यहाँ पे देखेंगे अगला कि हमारा एक एमाइड लिया गया CH3CONH2, तो एमाइड से भी हम लोग ये सेम H3O+ मतलब H3O+ को जैसे डिसोसिएट करेंगे H+ देगा, इसीलिए बोला गया कि ये H+ का मतलब H3O+ है। तो एमाइड जैसे H+ देंगे तो ये सीधे से एसिड में कन्वर्ट हो जाता है बाय द रिमूवल ऑफ NH3 मीन्स अमोनिया से बाई प्रोडक्ट। अब यहाँ पे बेंजामाइड लिया गया तो बेंजामाइड भी हमारा कन्वर्ट हो जाएगा बेंजोइक एसिड में। तो कन्वर्जन देखेंगे, अब आर के जगह अगर CH3 रख देंगे तो इथिल नाइट्राइल, प्रोपिल नाइट्राइल, मेथिल नाइट्राइल, कुछ भी नाइट्राइल होगा, या एथेनामाइड, प्रोपेनामाइड, ब्यूटेनामाइड, कुछ भी होगा। तो अगर एसिड में कन्वर्ट करना है तो सीधे सीधे बेसिक मीडियम एसिडिक मीडियम ले करके हीट कर दो, सीधे से वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, एसिड में। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये बेंजामाइड भी हमारा कन्वर्ट हुआ है बेंजोइक एसिड में। तो माइल्ड रिएक्शंस कंडीशंस आर यूज्ड टू स्टॉप द रिएक्शंस एट द एमाइड स्टेज, कि हम नाइट्राइल से बेंजोइक एसिड बना रहे हैं, लेकिन अगर मान लो एमाइड तक रोकना है तो कुछ कंडीशन वहाँ पे क्रिएट करके हम यहाँ पे रिएक्शन को स्टॉप कर सकते हैं। मीन्स हमारा मेन प्रोडक्ट जो एसिड था अब वो एमाइड में आके रुक जाएगा। नेक्स्ट है फोर्थ फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजन। ग्रिग्नार्ड रीजन मीन्स RMgX। RMgX मीन्स एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइड। जब भी ग्रिग्नार्ड रीजन लेते हैं ड्राई ईथर वहाँ पे यूज करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखते हैं कि CO2 के साथ हम लोग जैसे रिएक्शन कराए तो होता क्या चीज़ है यहाँ पे, जैसे लेते हैं RMgX, मान लो यहाँ पे मैं R ले लिया, R मीन्स CH3 ले लेते हैं और इसी से डायरेक्ट जुड़ा है MgX। तो फर्स्ट दिस बॉन्ड विल बी डिसोसिएट एंड कार्बन इज ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट फ्रॉम कार्बन साइड, सो कार्बन कंटेंट नेगेटिवली चार्ज्ड एंड मैग्नीशियम यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। तो C डबल बॉन्ड हो तो इसको भी अगर तोड़ेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के पास जाएगा और ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के पास। तो यहाँ पे हमारा जो स्ट्रक्चर होगा इस तरीके से बन जाता है MgX, और नीचे में आ जाता है R या फिर CH3 जो भी रखना चाहो। और ठीक, इसको यहाँ पे कराया गया है। अगली बार में जब इसको, अच्छा ये कार्बन है मैग्नीशियम है, ये बॉन्ड को अगर तोड़ेंगे तो ऊपर में यहाँ पे इलेक्ट्रोन नेगेटिव कार्बन नॉन मेटल है,
तो इसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होगा, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होगा, नाइट्रोजन की तरफ, कार्बन की तरफ, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। और वही बॉन्ड को तोड़ेंगे तो मैग्नीशियम के ऊपर कौन सा आएगा, तो मैग्नीशियम इज ए इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट एंड मेटल, सो मेटल हैज टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, कि जो हमारा मेटल है इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी रखता है, और कोई भी एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वहाँ पे चार्ज आ जाता है पॉजिटिव, इसलिए मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव आ गया। और जैसे ही जाके लोग कंबाइन होंगे तो कार्बन यहाँ पे सी और ओ के बीच में बॉन्ड को डिसोसिएट करेंगे, तो कार्बन के पास पॉजिटिव, बिकॉज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज मोर देन द कार्बन and oxygen develop negative charge, so magnesium attached with oxygen atom and this alkyl group means CH3 attached with this carbon atom, so the compound will be like this and after hydrolyze, कि यहाँ पे जैसे हम लोग हाइड्रोलाइज करेंगे मीन्स एडिशन ऑफ वाटर करेंगे तो C डबल तो यही रहेगा और यहाँ पे R आ जाएगा, R मीन्स ये वाला CH3 जो भी है, और इस हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन चला जाएगा, तो ये हो गया हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, और दूसरा हमारा बनेगा MgOH और एक ये वाला। तो हमारा मेन कंपाउंड क्या है, ये बनाना था, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH। तो इस तरीके से ये रिएक्शन हुआ है। फिफ्थ पॉइंट है फ्रॉम एसिल हैलाइड CH3COCl एंड एनहाइड्राइड, तो RCOCl H2O है, RCOOH प्लस Cl माइनस। अब यहाँ पे देखते हैं फ्रॉम एसिल हैलाइड, एसिल हैलाइड मतलब इस तरीके से होता है कि COO से Cl, अब यहाँ पे क्लोराइड भी बोल सकते थे लेकिन हाइलाइट फिलहाल यूज़ किया गया है, तो यहाँ पे एक सभी मान सकते हैं कि RCOCl के साथ जैसे वाटर हाइड्रोलाइज कराएंगे एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, मीन्स H2 को अगर तोड़ोगे तो क्या टूटेगा, नॉर्मली अगर समझा जाए तो H2 को तोड़ेंगे तो H प्लस और OH माइनस बनेगा, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड है Cl, ये बॉन्ड को तोड़ेंगे तो यहाँ माइनस यहाँ पे प्लस, तो इस माइनस को इस प्लस के साथ जोड़ दो और इस प्लस के साथ इस माइनस को जोड़ दो, तो ये HCl निकल जाएगा और ये C के साथ OH आ जाएगा। तो सेम यहाँ पे आया है कि C के साथ डबल OH आ गया और ये Cl सिंगल O यहाँ पे था और ये Cl की जगह पे OH आ गया, Cl इस वहाँ से एक हाइड्रोजन लेके निकल गया। सेकंड है एनहाइड्राइड मीन्स ये वाला, ठीक है। तो एनहाइड्राइड कब बनेगा, तो एनहाइड्राइड यहाँ पे जो बना है सेम यहाँ भी CO है तो COOH कर दो, बन गया हमारा एनहाइड्राइड। अब इसको बनाते कैसे हैं, तो एनहाइड्राइड बनाने के लिए क्या करेंगे, जैसे ये दिया गया है तो ये हमारा एसिड से ही बना है, मान लो इसको मैं लिख दिया C6H5COOH C6H5COOH, ठीक है। तो एनहाइड्राइड कब बनेगा, एनहाइड्राइड बनेगा बाय द रिमूवल ऑफ वाटर, कि दो मॉलिक्यूल है दोनों से अगर मैं एक से OH और दूसरे से H निकालता हूँ तब जाके बनता है एनहाइड्राइड। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से इसको निकाल लूँगा, तो ये हो जाएगा C6H5C, ये O मान के चलो इसको मैं ऐसे दे दिया O, और ये वाला O है यहाँ पे, ठीक। फिर नीचे में आएगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ इस कार्बन के साथ इस कार्बन का बॉन्ड जो है इस ऑक्सीजन के साथ बनेगा, तो इस तरीके से बना लेते हैं। और ये वाला ऑक्सीजन इस कार्बन से पर्सनल अटैच है उस सिर्फ उसी से, और ये हो जाएगा C6H5। तो इस तरीके से हमारा बनता है एनहाइड्राइड, और इसी को हम लोग चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि इसको ऐसे कर दिए और इसी को ट्वाइस कर दिए, नहीं यहाँ से नहीं, यहाँ से इसको यहाँ से ट्वाइस करेंगे, जैसे C6H5 है CO है, इसको ट्वाइस कर दो, ट्वाइस मतलब दो बार हुआ है। यहाँ पे ऑक्सीजन मीन्स ये ऑक्सीजन क्या करेगा, दोनों कंपाउंड को एक साथ जोड़ के रखेगा, तो ये वाला होता है हमारा एनहाइड्राइड। तो एनहाइड्राइड से भी H2O के प्रेजेंस में एसिड बना देंगे। यहाँ से वाटर निकाले थे तब एनहाइड्राइड बना था, अगेन उसको ऐड करोगे वाटर को तो फिर से एसिड बन जाएगा। उसके बाद है फ्रॉम एस्टर, ठीक है, कि एस्टर मीन्स RCOOR डेज, तो R डेज और R यहाँ पे R डेज और R का मतलब है कि यहाँ पे मान लो मैं इसके जगह मेथिल दे रहा हूँ तो ये एथिल होगा, प्रोपिल होगा, ब्यूटिल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सेम नहीं होगा लेकिन एस्टर में सेम भी हो सकता है, ठीक है। तो ये देखेंगे एथिल बेंजोएट लिया गया है, ठीक है। तो एथिल बेंजोएट को भी सेम हम लोग बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मेन हमारा ये है कि COOH जो है, ठीक है, COO COH5 था तो COO के बाद यहाँ पे H आ जाएगा,
और बाकी जो है वो एल्कोहल बन के निकाल जाता है। तो इस तरीके से हमारा रिएक्शन होता है। सो फॉर टुडे दीज आर इनफ। सो आज के लिए इतना ही, बंद करते हैं, अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।